Hi Shubham. I don't know why today the pen tab is not working. I think there was some update in the Teachment application. Because of that, the pen tab is not working. I don't know what is the issue. Okay. Anyway, so let's continue today with the oral class like we had you earlier. Okay. Let's start with let's way the topic is Delhi Sultanate. So we will try to complete the entire class cancel. No class cancel. Class will not be cancelled, but it will be in that same oral ways. Okay. Okay. Yeah, we will still complete Delhi Sultanate as per the plan. Okay, but it will be an oral class, and obviously we have some idea, right? We already have some idea about Delhi Sultanate and how the chronology was there for the kings. So we will just revise and complete this topic today. Okay. So the first in Delhi Sultanate, the first dynasty was slave dynasty, and the first ruler was Kutubuddin Aibak. Okay, so Kutubuddin Aibak, who was he? So he was a slave of Muhammad Ghori. Okay, so just remember one thing: like Muhammad Ghori had four four very important slaves. Okay, four very famous slaves, and the most famous was Kutubuddin Aibak. Then the second slave, which is very famous, is Muhammad bin Bakhtiyar Khilji. Okay, Muhammad Bakhtiyar Khilji, who destroyed Nalanda University and many other universities. Odantapura Vihar also he destroyed. So he was another slave of Muhammad Ghori, and two more slaves were, one was Yaldoj and one was Kubacha. Okay, so Yaldoj again, the third battle of Iran, it was fought in 1215. Okay, 1215. So it was Yaldoj versus Iltutmish. So these three are very famous, and even Kubacha is famous. Okay, so let's move forward. So Kutubuddin Aibak came in 1206, and he's also famous with the name as Lakh Baksh. Okay, and Lahore was the capital of Delhi Sultanate. Okay, so first capital of Delhi Sultanate was Lahore. Okay, so Kutubuddin Aibak's first capital is Lahore, and then Aibak means god of moon. Okay, so Aibak means god of moon, and he was also known as Lakh Baksh. So you know that, and his tomb is made in Lahore. Okay, so Kutubuddin Aibak's tomb is made in Lahore. Okay, then also Kutubuddin Aibak made one very famous building, which was Kutub Minar. Okay, Kutub Minar. So did he make the entire Kutub Minar? No, he only made the first storage. Okay, first storage in 1199. Okay, so before he was a king, before he was the king of like Delhi Sultanate, he made this. Okay, there was one more interesting fact that he did not accept as the kingship. He so therefore Iltutmish is called as the first actual king of the Sultanate. He always assumed to be the slave of Muhammad Ghori, and in the name of Ghori only he uh, ruled the Sultanate. Okay, so Qutub Minar, the first storage was built by Kutubuddin Aibak, and then the other storage like 2, 3, 4, 5 were made by Iltutmish. Okay, 2, 3, 4, 5 were made by Iltutmish in 1229. Okay, and then in 1369 there was a lightning. Okay, so in 1369, say 1369, 1369, there was a lightning, and fourth and fifth storage got like it fell down. Then the reconstruction was done by Firoz Shah Tughlaq. ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हैं फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर्स का. ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली एक साल के बाद और पुराना हो गया होगा कुतुब मीनार. तो 1489 और 1517 के बीच में सिकंदर लोदी ने रिनोवेशन भी कराया इसका. ओके, सो नाउ द फ्लो इज क्लियर कि कुतुब मीनार ने हमारा फर्स्ट स्टोरेज बनाया, मतलब पहला स्टोरेज बनाया, एंड देन 2, 3, 4, 5 बनाया इल्तुतमिश ने. देन चौथा और पांचवा गिर जाता है 1369 में,
बनाता है तुम्हारा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक बनाता है 1369 में, और फिर सिकंदर लोदी बनाता है, उसका मतलब रिनोवेट कराता है बस। ठीक है। हम्म। तो फिर ये हो गया। उसके बाद अच्छा एक और अलाई मीना है, जैसे ऐसे कुतुब मीनार है ना, अगर जाते हो ऐसे आप रोड से दिल्ली में, इधर कुतुब मीनार है, इधर अलाई मीना, अलाई अलाई दरवाजा है, अलाई मीना, ये सब है। तो ये सब कौन बनाता है? ये सब बनाता है अलाउद्दीन खिलजी। जस्ट काइंड ऑफ उसको नकल करने की कोशिश की गई है। ठीक है। उसके बाद कुछ और फेमस बिल्डिंग्स है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे बनते हैं। उसमें से एक है कुवतुल इस्लाम मॉस्क। ठीक है, कुवतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली। और एक है 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। ठीक है। अच्छा, कुतुब मीनार किसके नाम पे रखा गया था? वॉज इट लाइक, क्या वो कुतुब मीनार के नाम पे रखा हो, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे रखा हो? तो नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक रिलीजियस सेंट को फॉलो करता था। ठीक है, एक रिलीजियस सेंट को फॉलो करता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। ओके, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। सो उसके ही नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर जाता है, तो फिर कुछ टाइम के लिए उसका बेटा जो कि है आराम शाह, वो आता है। 8 महीनों के करीब वो सल्तनत का मतलब सुल्तान बेसिकली वो रहता है। ठीक है। लेकिन ही वॉज ऑब्वियसली आराम शाह है तो उसको आराम पसंद होगा, राइट? तो वो उतना एफिशिएंट नहीं रहता, उतना एफिशिएंट नहीं रहता। तो फिर इसलिए इल्तुतमिश जो कि स्लेव रहता है ना कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो वो फिर सीन्स में आता है। फिर वो आता है, उस वक्त वो गवर्नर रहता है बदाऊं का। बदाऊं इज एरिया इन उत्तर प्रदेश। वो बदाऊं का गवर्नर रहता है उस वक्त इल्तुतमिश। लेकिन वो रिवोल्ट कर देता है आराम शाह के अगेंस्ट। और फिर एक होता है बैटल ऑफ जूथ। ठीक है, युद्ध नहीं, जूथ। ठीक है। तो बैटल ऑफ जूथ 1211, 1211 में एक बैटल हो रहा है इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक का। एंड उसमें इल्तुतमिश, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक बोल रहा हूँ, उसके बेटे मतलब आराम शाह और इल्तुतमिश का। और उसमें क्या होता है, इल्तुतमिश जीत जाता है, और सिर्फ जीतता ही नहीं, उसको मार भी देता है, आराम शाह को मार भी देता है। ठीक है। तो बेसिकली 1211 में, मतलब 1211 से कुतुबुद्दीन ऐबक का शुरू हो जाता है राजकाज। ठीक है। उसके बाद सो बेसिकली ही इज ऑफिशियली द फर्स्ट सुल्तान। ठीक है। अब ये 1211 में तो आ गया, लेकिन घोड़ी के तो 4 स्लेव्स थे ना, मैंने आपको बताया था पहले ही। तो एक स्लेव है दिल्ली में इल्तुतमिश जो कि ऐबक का एक्चुअली स्लेव है। उसके बाद गजनी में बैठा हुआ है यलदौज। ठीक है, यलदौज वो जो घोड़ी का एक स्लेव है। और एक जो कुबाचा है वो काबुल और कांदाहार में बैठा हुआ है। ठीक है। तो घिटपिट हो रहा है, घिटपिट हो रहा है फॉर द पावर। तो गजनी से यलदौज आ रहा है, एंड वो क्या होगा, बैटल ऑफ टेरेन होगा थर्ड। तो दिस थर्ड बैटल ऑफ टेरेन 1215 में हो रहा है बिटवीन इल्तुतमिश एंड यलदौज। ठीक है। तो उसमें इल्तुतमिश जीत जा रहा है और मतलब डिफीट कर दे रहा है यलदौज को। ठीक है। फिर 1221 में पहला इन्वेजन हो रहा है गेंगिस खान का। ठीक है। तो गेंगिस खान तो पता ही है, द मोस्ट क्रूअलसम रूलर ऑफ एशिया में भी। ठीक है। तो वो क्या है, मतलब वो गेंगिस खान मंगोलिया से आ रहा है, और उसको चाहिए अजबेक उज्बेक का रूलर जलालुद्दीन मंगबरनी। ठीक है। उसको चाहिए, उसको मांगता है जलालुद्दीन मंगबरनी, क्योंकि जलालुद्दीन मंगबरनी ने गेंगिस खान के भाई को मारा था। ठीक है। तो मंगबरनी हेल्प मांगता है इल्तुतमिश से कि बचा लो भाई मुझको। लेकिन इल्तुतमिश रिफ्यूज कर देता है, एंड इट वाज अ वेरी वाइज, मतलब डिप्लोमेटिकली बहुत ही उसका अच्छा फैसला था। और अटैक अवॉइड हो जाता है, मतलब मंगोल लोग दिल्ली सल्तनत के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, तो इल्तुतमिश का कुछ पॉलिसीज हम फेमस फेमस देख लेते हैं। तो ये टका और टंका को लेकर आता है। तो ये दो तरह के कॉइन्स लाता है, एक है सिल्वर कॉइन, एक है कॉपर कॉइन। तो सिल्वर कॉइन का क्या नाम है? टका या टंका। ठीक है। टका टंका जो है दैट इज सिल्वर कॉइन, एंड जो जीतल है दैट इज कॉपर कॉइन। ठीक है। तो इल्तुतमिश दो तरह के कॉइन चला रहा है, सिल्वर कॉइन विच इज नोन एज टका एंड टंका, एंड जीतल आर द कॉपर कॉइन्स। ठीक है। उसके बाद ना ये प्रोविंस को इक्ता बोल रहा है, और जो इक्तदारी सिस्टम है ना, ये सब लाया है, इसका ही कॉन्सेप्ट है इल्तुतमिश का। बेसिकली एक एक जो प्रोविंस है दैट विल बी कॉल्ड एज इक्ता, और इक्ता का हेड कौन रहेगा? इक्तदार रहेगा। ठीक है। तो इक्तदार इज द हेड ऑफ द प्रोविंस। ठीक है। उसके बाद 1229 में इल्तुतमिश ब्रॉट द कैपिटल टू दिल्ली फ्रॉम लाहौर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
मतलब पहली बार दिल्ली में कैपिटल कौन लाया, कौन सा सुल्तान लाया, दैट वाज इल्तुतमिश। ठीक है। फिर एक 40 स्लेव्स का एक फॉर्मेशन किया, मतलब अपने 40 खास स्लेव्स को लेकर दल चलीसा बनाया। ठीक है। बेसिकली दोज 40 स्लेव्स वर द एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है। तो दल चलीसा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर दैट 40 स्लेव्स, दैट इज तुर्काने चहलगामी। ठीक है। तुर्काने चहलगामी। ठीक है। तो तुर्काने चहलगामी में 40 स्लेव्स का वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। उसके बाद 1236 में 1236 में इल्तुतमिश डाइड इन दिल्ली एंड क्रिएटेड हिज टॉम्ब हिमसेल्फ बिफोर डाइंग। यही बहुत फेमस क्वेश्चन है। मतलब ऐसा सुल्तान जिसने अपने टॉम्ब पहले ही बना लिया, अपने मरने से पहले ही बना लिया, एंड ही वाज इल्तुतमिश। ठीक है। 1236 में उसने ऐसा काम किया। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह बिकेम सुल्तान। ठीक है। जो एल्डेस्ट बेटा था, जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था, उसका जो एल्डेस्ट सन है इल्तुतमिश का, वो बन जाएगा सुल्तान एज पर द कन्वेंशन। ठीक है। लेकिन पीपल ऑफ दिल्ली किल्ड हिम एंड नेम्ड रजिया सुल्तान एज द नेक्स्ट सुल्तान। ठीक है। तो मतलब रजिया सुल्तान बहुत फेमस है, 1236 में आती है रजिया सुल्तान। तो क्यों आती है कि पीपल ऑफ दिल्ली को वो पसंद नहीं है, वो जो बेटा है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ही इज इनएफिशिएंट। ठीक है। तो अब रजिया सुल्तान आ तो गई है, बट इन दैट टाइम, उस टाइम पर एक औरत एक क्वीन कैसे हो सकती है, बहुत लोग को ये बात हजम नहीं होती है। स्पेशली जो दल चलीसा में जो 40 लोग बैठे हुए, उनको तो एकदम नहीं हजम हो रही है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो अब जो रजिया है, ठीक है, तो रजिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती कौन है, एक है ऐतगीन और एक है अल्तुनिया। ठीक है। और एक और आदमी है जिसका नाम है याकूत खान। तो जो याकूत खान है ना, वो ही इज काइंड ऑफ, वो जो अश्व है, जो घोड़े हैं, उसका केयर टेकर है। मतलब जो राज्य के जो बेसिकली राज्य के जो बेस्ट घोड़े होते हैं, मतलब बेसिकली जो राजा लोग यूज करते हैं, या फिर वहाँ जो कोर्ट मेंबर्स यूज करेंगे, तो उसका वो हेड है। ठीक है। तो वो अश्वशाला का हेड है। ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, जो ऐतगीन है, जो कि बदाऊं का ये है, इक्तेदार है। ठीक है। और जो अल्तुनिया है, जो कि भटिंडा का इक्तेदार है। ठीक है। तो बदाऊं आपको याद होगा कि इल्तुतमिश का भी वही था, मतलब इल्तुतमिश वहीं का भी गवर्नर था। ठीक है। तो उसका ऑब्वियसली थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा, राइट। तो ऐतगीन इस तरफ है, दिल्ली के इस तरफ है, और ये इधर इस तरफ है, मतलब अल्तुनिया इस तरफ है। ठीक है। ऐतगीन इधर है, अल्तुनिया भटिंडा पंजाब इस तरफ है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि रजिया ने याकूत खान को बना दिया आमिर ए अकुर। आमिर ए अकुर विच मीन्स हु टेक्स केयर ऑफ द रॉयल हॉर्सेस। ठीक है। आमिर ए अकुर। ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, एक और चीज हो रहा है, एक इसी बीच एक और चीज क्या हो रहा है ना, कि जो बहराम शाह है, जो कि सेकेंड सन है। ठीक है। इल्तुतमिश का जो दूसरा बेटा है, इल्तुतमिश के 4 बेटे हुए। ठीक है। तो जो दूसरा बेटा है बहराम, पहला तो ऑलरेडी मर चुका है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन तो पहले ही मर चुका है। तो जो सेकंड है बहराम शाह, उसने वो मतलब वो क्या है, वो भी अगेंस्ट है, मतलब वो रजिया के अगेंस्ट है। ठीक है। तो अल्तुनिया ने क्या किया है, रिवोल्ट कर दिया भटिंडा में। ठीक है। अल्तुनिया रिवोल्ट कर दिया भटिंडा में, और अल्तुनिया किल्ड याकूत एंड कैप्चर्ड रजिया। ठीक है। इसकी वो तो ऐसे ही, वो जो दूसरा बेटा है बहराम शाह, वो तो ऐसे ही अगेंस्ट है, और इधर क्या हो रहा है, अल्तुनिया ये सब काम कर रहा है। ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हो रहा है, कि अल्तुनिया ने जैसे ही याकूत को मारा, फिर रजिया ने शादी कर लिया। रजिया ने भी सोचा कि अब तो मतलब याकूत मर ही गया है, तो अब कम से कम दिल्ली का मतलब राजपाट संभालने के लिए कम से कम इसी को साथ ले लेते हैं, मतलब शादी कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो लोग जब वापस आ रहे हैं, जब अल्तुनिया और रजिया वापस आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कैथल, जो कि हरियाणा में एक जगह है कैथल, ठीक है, तो वहां पर बहराम शाह ने ऑर्डर कर दिया दल चलीसा को टू किल रजिया। ठीक है। व्हेन दे वर रिटर्निंग टू दिल्ली। ठीक है। तो रजिया को रास्ते में ही मार दिया गया। और कैथल में क्या बन गया, कैथल में बन गया टॉम्ब ऑफ रजिया। ठीक है। एकदम क्लियर हो गया सारा कुछ। अब जो है बहराम शाह विल बी द नेक्स्ट सुल्तान। ठीक है। 1240 में बहराम शाह जो है, वो बोला कि ही क्रिएटेड हेड ऑफ दल सलीसा, जिसको बोलते हैं नायाबे मुमलकत। नायाबे मुमलकत। ठीक है। तो कुछ कुछ चीज जैसे कि ये क्या था, तुर्काने चहलगामी क्या था, तुर्काने चहलगामी था वो दल सलीसा। और उस तुर्काने चहलगामी का अब हेड कौन होगा,
तो उसका हेड होगा नायाबे मुमलकत। ठीक है, नायाबे मुमलकत। तो जो नायाबे मुमलकत है उसका हेड है अब कौन, बताओ कौन हो सकता है? अल्तुनिया तो मर चुका है, बच कौन रहा है? एतगीन। ठीक है, तो जो एतगीन है जो कि बदाऊं का जो इराहा था हेड, मतलब वहां का एक इक्तदार है, वही बन गया है अब नायाबे मुमलकत, बेसिकली हेड ऑफ दल जलीसा। ठीक है, फिर 1241 में हो रहा है सेकेंड अटैक ऑफ मंगोल्स। 1241 में हो रहा है सेकेंड अटैक ऑफ मंगोल्स, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट अटैक ऑफ मंगोल्स ऑन दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत। उसके बाद फिर क्या हो रहा है? उसके बाद मसूद शाह आ रहा है, मतलब बहराम शाह बहुत टाइम तक नहीं रहता है, उसके टाइम पे बस एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है कि मंगोल तो अटैक कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मसूद शाह आ रहा है, वो भी 4-5 साल रह रहा है, 1242 से लेकर 1246 तक। उसके बाद भी नसरुद्दीन महमूद आ रहा है, हुज अगेन नॉट वेरी एफिशिएंट। तो वो 1246 से लेकर 1265 तक तो रहता है, लेकिन उसने वजीर किसको चुन लिया? उसने वजीर चुन लिया है बलबन को, उलुघू खान को। ठीक है, उलुघू खान का मतलब क्या हो गया? खान ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो नसीरुद्दीन महमूद ने चुन तो लिया अपना वजीर बलबन को, लेकिन बलबन है बड़ा खतरनाक, उसको खुद बनना है राजा। ठीक है, तो 1265 में बलबन उसने वो बन गया गियासुद्दीन बलबन, एंड ही किल, मतलब उसका नाम ही है गियासुद्दीन बलबन, एंड ही किल्ड दल चलीसा। सबसे पहले वो आया तो उसको पता है पूरा सिस्टम दल चलीसा में, मतलब क्या क्या हो रहा है भाई, इंटरनल पॉलिटिक्स हो रहा है। सबसे पहले दल चलीसा खत्म करो। ठीक है, दल चलीसा सबको मार दिया, 40 को मार ही दिया। ठीक है, उसके बाद इसने दो डिपार्टमेंट्स बनाए, दीवाने अर्ज और दीवाने बरीद। ठीक है, आपको याद है शुभम, क्या था ये दोनों, दीवाने अर्ज और दीवाने बरीद? दीवाने अर्ज, अर्ज अर्ज क्या होता है? अर्ज इज आर्मी। ओके, दीवाने अर्ज वाज आर्मी एंड दीवाने बरीद वाज गुप्तचर। वो जो स्पाई का डिपार्टमेंट था, स्पाई करने वालों का, और स्पिनियज डिपार्टमेंट था। ठीक है, उसके बाद बलबन स्टार्ट द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। ये तो एकदम फेमस एग्जाम पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, आयरन ब्लड पॉलिसी किसने शुरू किया था? उसके बाद स्टार्टेड सिजदा एंड पैबोज। ठीक है, सजदा सजदा पैबोज, ठीक है, दोनों ये शुरू कर रहा है। स्टार्टेड नवरोज फेस्टिवल, which is celebrated as the first like पर्शियन न्यू ईयर है ये नवरोज। ठीक है, मतलब ईयर का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। ठीक है, नवरोज शुरू कौन कर रहा है? तो बलबन। ठीक है, इस टाइम क्या हो रहा है? बलबन के टाइम क्या हो रहा है? तो थर्ड अटैक ऑफ मंगोल्स हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड अटैक ऑफ मंगोल्स इज कंसिडर्ड टू बी द सेकंड अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसका जो सन है, हिज सन शहजादा मोहम्मद, ही गॉट किल्ड इन दिस अटैक। ठीक है, तो बलबन का बेटा तो मर गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? बलबन डिप्रेस हो गया बेचारा, बलबन डिप्रेस हो गया। इसने 40 नाम आदमी को भले ही मारा तो उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन अपना बेटा बन गया तो फिर डिप्रेस हो गया। उसके बाद ही डाइड आउट ऑफ डिप्रेशन इन 1287। ठीक है, तो 1265 में बलबन आ रहा है, 1265 में बलबन आ रहा है, और 1287 में वो मर जा रहा है। इसका जो टॉम है बलबन बलबन का, वो कहाँ हो सकता है? आप इमेजिन करो, दिल्ली में ही मर रहा है तो दिल्ली में इसका टॉम है। ठीक है, टॉम ऑफ बलबन इज देयर इन दिल्ली इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद फिर कैकूबाद कर का एक कैकूबाद का एक करके एक रूलर आता है, कैकूबाद, एंड ही इज द ग्रैंड सन ऑफ बलबन। ठीक है, जो कैकूबाद है, कैकूबाद इज द ग्रैंड सन ऑफ बलबन। ठीक है, उसके बाद कैमूर से आ रहा है, कैमूर। तो कैमूर से ही वाज किल्ड बाय मलिक फिरोज, और शुरू कर देगा ये खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये? जब स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गया है, ठीक है, मतलब जो कैमूर से, ही विल बी द लास्ट रूलर्स ऑफ ऑफ स्लेव डायनेस्टी। और 1290 में मलिक फिरोज ने उसको मार दिया है। और मलिक फिरोज कौन है? मलिक फिरोज है जलाल चाचा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी हमने सक्सेसफुली खत्म कर दिया है। उसके बाद 1290 में आ रहा है जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो 1293 में एक अटैक हो रहा है देवगिरी में। ठीक है, और जो देवगिरी का रूलर है, ही इज रामचंद्र देव। ठीक है, देवगिरी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, देवगिरी महाराष्ट्र में है, एंड रामचंद्र देव
रामचंद्र देव वहां का रूलर है। एंड क्या हो रहा है, रामचंद्र देव वर्सेस कौन है, वही फेमस अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी एज अ जनरल, एज अ सेनापति उसको भेजा है कौन, उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भेजा है अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी। ठीक है, तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट अटैक, फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑफ और इन ऑन साउथ इंडिया। ठीक है, इसके पहले जो राष्ट्रकूटा से बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, इवन नॉर्थ में थोड़ा बहुत वो लोग आ गए थे, बट साउथ में आ नहीं आ पा रहे थे। बट अभी क्या हुआ, अभी अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम, वो पहला मुस्लिम ऐसा सेनापति था जिसने कि साउथ में वो इंटर किया। ठीक है, फिर एक ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी बाय रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव एंड अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और इस टाइम पे ही थर्ड अटैक हो जाता है मंगोल्स का। ठीक है, तो मंगोल लोग तीसरी बार दिल्ली सल्तनत पे अटैक कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो ये फोर्थ अटैक होना चाहिए, लेकिन वही क्योंकि पहला तो इल्तुतमिश ऐसे ही सब्जुगेट कर देता है, तो इसलिए ये दिस इज कंसिडर्ड टू बी द थर्ड अटैक ऑफ मंगोल्स ऑन दिल्ली सल्तनत। ठीक है, 1296 में आता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 1296 लेकर 1316 तक रहता है, 20 साल तक रहता है ये। और ये क्या रहता है, ये भतीजा भी है और दामाद भी है जलालुद्दीन का। ठीक है, तो ये तो होता ही चलता ही है ये सब में, तो भतीजा भी दामाद भी है। एंड हिज एक्चुअल नेम इज अली गुर शर्पा। ठीक, अली गुर शर्पा। ठीक, अली गुर शर्पा इसका ओरिजिनल नाम है अलाउद्दीन खिलजी का। और ये कारा का एक्चुअली इक्तदार था। ठीक है, कारा इसका, कारा का इक्तदार था ये। ठीक, कारा प्रोविंस का ये इक्तदार था। ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट है क्या है, प्रयागराज और कौशंबी है, मतलब वो वाला एरिया, इलाहाबाद वाला एरिया आप इमेजिन कर सकते हो यूपी का। ठीक है, तो वहां का ये इक्तदार था। लेकिन इसने फिर क्या किया, इसने तो चाचा को ही मार दिया। मतलब बेसिकली क्या किया, क्या सीन क्या होता है, मतलब इफ यू हैवंट वॉच्ड पद्मावत मूवी, तो उसमें क्या होता है ना कि क्या होता है कि जब वो देवगिरी से जीत कर आता है, तो बहुत सारे स्पेशल जेम्स वगैरह, मतलब बहुत कुछ स्पेशल चीजें जीत कर आता है अलाउद्दीन खिलजी, बहुत लेकर आता है वहां से, लूट लूटपाट बहुत बहुत करके आता है। लेकिन फिर वो जाता नहीं है वापस, मतलब दिल्ली मिलने नहीं जाता जलाल चाचा से। तो फिर क्या होता है, जलालुद्दीन खिलजी खुद आता है कारा उससे मिलने, और फिर कारा में क्या होता है, वो मार देता है कारा में, जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी डिफीटेड मंगोल्स। अच्छा, ही इज द फर्स्ट सुल्तान जो जिसने मंगोल को ही हरा दिया। ठीक है, मंगोल को डिफीट कर दिया एंड कैप्चर 2000 मंगोल सोल्जर्स। ठीक है, ही वाज द चीफ ऑफ जलाल्स आर्मी, आर्मी देन। ठीक है, तो वो जो तीसरा अटैक हो रहा है ना मंगोल्स का, तो उसको खत्म कर दिया बेसिकली, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो उसको खत्म कर दिया है, और उसके 200 आर्मी को बंदी बना लिया। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन जो है, वो जो देवगिरी वाला फेमस अटैक हुआ है, वो तो तब पता ही है आपको। ठीक है, तो हमने कर ही लिया। ठीक है, और ये सब बात कहाँ लिखा हुआ है, तो जोधपुर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है अबाउट दीज थिंग्स, लाइक जो देवगिरी पे जो अटैक हुआ है वो लिखा हुआ है जोधपुर इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसके पॉलिसीज बहुत अच्छे अच्छे थे। इसके पॉलिसीज क्या क्या थे, तो पहला है कैश सैलरी टू सोल्जर्स। ठीक है, सो ही गेव कैश सैलरीज। ठीक है, पैसे कैश में दे रहा है। फिर ही केप्ट एन स्टैंडिंग आर्मी। ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी रख रहा है, पहला सुल्तान जो जिसने स्टैंडिंग आर्मी रखा। एक्सपैंडेड दिल्ली सल्तनत टू साउथ। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को साउथ में एक्सपैंड किया। उसके बाद इसका एक बहुत फेमस दरबारी पोएट है। ठीक है, आमिर खुसरो, जिसको बोलते हैं तोताए हिंद। ठीक है, तोताए हिंद या फिर पैरेट ऑफ इंडिया। तो और ये खुसरो ने क्या क्या स्पेशल काम किए हैं, तो ही इन्वेंटेड सितार एंड तबला। ठीक है, खुसरो ने इन्वेंट किया है सितार एंड तबला। ठीक है, और इवन जो खड़ी बोली होती है ना, खड़ी बोली या फिर कव्वाली में जो खड़ी बोली होती है, वो उसका भी शुरुआत खुसरो ने ही किया है। ठीक है, तो जो खुसरो है ना, वो पता है वो बहुत सारे राजाओं के उसमें रह चुके हैं। एंड ही ऑल्सो कंसिडर अलाउद्दीन खिलजी टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ठीक है, तो इसने अलाउद्दीन को क्या नाम दिया है, सुल्तान जहां। ठीक है, मतलब जहान का सुल्तान है ये, सुल्तान जहां है अलाउद्दीन। ठीक है, फिर खुसरो वर्कड विद बलबन एंड मोहम्मद बिन तुगलक एज वेल। तो समझ रहे हो, आपकी बलबन के साथ भी वर्क किया जो भी काफी स्ट्रॉन्ग था, एंड इवन मोहम्मद बिन तुगलक के साथ किया है, बट स्टिल इसने अलाउद्दीन को बोला है सुल्तान जहां। ठीक है, और खुसरो के गुरु कौन थे, इसके गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, जिनका की थोड़ा बहुत हम लोग जाते हैं उधर अजमेर हो गए, तो औलिया का मिलता है ना, निजामुद्दीन औलिया का बहुत कुछ। ठीक है,
तो 1298 में गुजरात मिशन के लिए अलाउद्दीन खिलजी भेजता है मलिक कफूर को, ठीक है। 1298 में गुजरात मिशन के लिए मलिक कफूर को भेजता है, ठीक है। और मलिक कफूर कौन है? तो मलिक कफूर वही स्लेव है जिसको 1000 दिनारी में ये खरीदा था। 1000 दिनारी में अलाउद्दीन खिलजी खरीदा था मलिक कफूर को, और मलिक कफूर इसका क्या है, कमांडर इन चीफ बन गया है अब, और इसको भेज दिया है गुजरात मिशन पे, ठीक है। और वही गुजरात मिशन पे भेज दिया है। और फिर चित्तौड़ मिशन पे जो कि 1303 में हुआ है, ठीक है। तो 1298 में गुजरात मिशन हुआ है, और 1303 में हुआ है चित्तौड़ मिशन, ठीक है। उसके बाद चित्तौड़ मिशन में क्या है स्पेशल बात? चित्तौड़ मिशन में स्पेशल बात है, पद्मावत नॉवल में लिखा हुआ है कि जब वो अलाउद्दीन खिलजी जाता है तो फिर वो मास लवंदर जौहर के बारे में लिखा हुआ है, ऑफ रानी पद्मावती। और ये नॉवेल कब लिखा गया है? तो ये शेरशाह सूरी के टाइम पर लिखा गया है, अराउंड 1540 टू 1545। और इसको कौन लिखा है? तो मोहम्मद जयसी ने लिखा है, ठीक है। मोहम्मद जयसी ने एक नॉवेल लिखा है पद्मावत, जिसमें कि मास लेवल जौहर का जिक्र हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1306 में साउथ इंडिया मिशन हुआ है, ठीक है। मलिक कफूर जो है, ही इज अगेन द लीडिंग मतलब कमांडर इन चीफ है, ठीक है। तो 1306 में हो रहा है साउथ इंडिया मिशन। फिर वारंगल का जो राजा है प्रताप रुद्र देव, ठीक है, प्रताप रुद्र देव। अच्छा, वहां पे कौन था? हमारा देवगिरी में कौन था? रामचंद्र देव था, ठीक है। देवगिरी में रामचंद्र देव था। और अब यहाँ पर कौन है? वारंगल में है हमारा प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव। एंड प्रताप रुद्रदेव सरेंडर, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव सरेंडर कर देता है वारंगल में। एंड मलिक कफूर टू कोहिनूर डायमंड। तो मलिक कफूर अब कोहिनूर डायमंड ले रहा है किससे? तो प्रताप रुद्रदेव से, ठीक है। ट्रैवल्ड टिल रामेश्वरम, ठीक है, मतलब मलिक कफूर रामेश्वरम तक ट्रैवल करता है। एंड फिर इसका नाम क्या देता है? सिकंदर सानी, ठीक है, सिकंदर सानी नाम दे देता है इसका अलाउद्दीन खिलजी का। बेसिकली सिकंदर सानी मतलब अलेक्जेंडर टू, ठीक है। तो अलेक्जेंडर द्वितीय बन जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, पॉलिसीज क्या है? तो ही अप्लाई जजिया एंड जकत, ठीक है, जकत और जजिया दो टैक्स अप्लाई कर रहा है। फिर फिर ये क्या और क्या कर रहा है? हाउस टैक्स, एग्रीकल्चरल टैक्स, इरिगेशन टैक्स और एनिमल फीडिंग टैक्स। तो अगर कंपेयर किया जाए ना, तो मतलब इसका जो टैक्सेशन सिस्टम था बहुत ही खतरनाक था। मतलब इतना ज्यादा टैक्स हमको लगता है, तो ये सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला सुल्तान रहा था, ठीक है। सबसे ज्यादा टैक्स यही वसूलता था, मतलब हर चीज का टैक्स है, ठीक है। तो हाउस टैक्स भी है, एग्रीकल्चर टैक्स भी है, इरिगेशन टैक्स भी है, एनिमल फीडिंग टैक्स भी है, ठीक है। He created an anti-corruption डिपार्टमेंट, दीवाने मूसत खराज। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बना रहा है ये दीवाने मूसत खराज, ठीक है, दीवाने मूसत खराज, विच इज द एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। दीवाने रियासत, ठीक है, दीवाने रियासत, ठीक है। तो दीवाने रियासत क्या है? बाजार मैनेजमेंट, ठीक है, बाजार मैनेजमेंट। तो ये एक क्या कर रहा है? ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बना रहा है, और बाजार मैनेज करने के लिए दीवाने रियासत बना रहा है, ठीक है। फिर अलाउद्दीन और क्या कर रहा है? अलाउद्दीन और क्या कर रहा है? डोंट नो क्या हो गया यार इसको, व्हाइट बोर्ड को मेरे। ओके, नो प्रॉब्लम। सो दीवाने रियासत बना रहा है बाजार मैनेजमेंट के लिए, और ये क्या था? दीवाने मूसत खराज वॉज फॉर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद अलाई दरवाजा तो हमने किए थे कि अलाई दरवाजा बना रहा है, अलाई मीना बना रहा है, अलाई मीनार मतलब। और हौज खास बना रहा है, और सीरी फोर्ट बना रहा है, ठीक है। तो हौज खास किसने बनाया? हौज खास बनाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। और इवन सीरी फोर्ट भी बनाया है अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ही फिक्स द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। तो जो कॉन्सेप्ट है एमआरपी का, तो वो आ रहा है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। एंड ही वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। वो हर चीज का जो दाम बढ़ रहा है ना, मतलब डे बाय डे, उसको कंट्रोल करने का कोशिश किया है अलाउद्दीन खिलजी। हुलिया दाग सिस्टम, हुलिया दाग सिस्टम इज स्केच प्लस सिंबल, मतलब समझ रहे हो कि एक हुलिया है और एक दाग, मतलब हुलिया दाग सिस्टम बेसिकली क्या बोले, मतलब इवन हर घोड़े पे भी मतलब एक
एक स्टैम्प, मतलब इवन सोल्जर्स पे एक स्टैम्प, मतलब हर जगह हुलियादार सिस्टम को बहुत यूज किया है ये। ठीक है। मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी इसके बाद आता है 1316 में, और ये बहुत 4-5 साल ही रह पाता है, और जो किसकी अलाउद्दीन खिलजी का बेटा रहता है, और ये सेल्फ डिक्लेयर्ड खलीफा है। ठीक है, इसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं तो खलीफा हूँ। ठीक है। एंड ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन वुमेन आउटफिट और नो ड्रेस एट ऑल। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो किस टाइप का होगा थोड़ा। और फिर क्या होता है, जो पंजाब में जो इक़्तिदार बैठा हुआ रहता है गाजी मलिक, वो किल मतलब मार देता है मुबारक शाह खिलजी को। ठीक है, तो मुबारक शाह खिलजी को मार देता है गाजी मलिक, और तुगलक डायनेस्टी का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अभी तक क्लास कैसा लग रहा है शुभम? ठीक है, तो फिर तुगलक डायनेस्टी का शुरुआत हो रहा है 1320 में। ठीक है, 1320 में तुगलक डायनेस्टी का शुरुआत हो रहा है। एंड द फर्स्ट थिंग वाज कंस्ट्रक्शन ऑफ तुगलकाबाद। ठीक है, तो तुगलकाबाद बन रहा है, ही कंस्ट्रक्टेड अ सिटी कॉल्ड तुगलकाबाद। एंड देन फर्स्ट सुल्तान टू बिल्ड कैनाल्स फॉर इरिगेशन। ठीक है, सो गियासुद्दीन तुगलक हु वाज लाइक हु इज गाजी मलिक। ठीक है, तो गाजी मलिक ही कौन है? गियासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक है, एंड ही कंस्ट्रक्टेड तुगलकाबाद, एंड ही वाज द फर्स्ट सुल्तान टू बिल्ड कैनाल्स फॉर इरिगेशन। ठीक है, 1323 में, 1323 में 1323 में गियासुद्दीन तुगलक का बेटा जौना खान, जो कि कमांडर इन चीफ रहता है, वो जाता है तेलंगाना मिशन पर। ठीक है, तेलंगाना मिशन पर जाता है, और फिर क्या करता है, उसको कैप्चर करता है तेलंगाना वाला एरिया को, और उसका नाम क्या रख देता है? सुल्तानपुर। ठीक है, कैप्चर एंड नेम देता है सुल्तानपुर। ठीक है, अब जो तेलंगाना वाला एरिया है वो क्या है? सुल्तानपुर है। ठीक है, फिर गियासुद्दीन जो तुगलक है, उसने हजरत निजामुद्दीन औलिया को टाइटल दे दिया है महबूब ए इलाही, अल्लाह का महबूब। ठीक है, जो हजरत निजामुद्दीन औलिया है, उसको टाइटल दिया है महबूब इलाही। ठीक है, अल्लाह का महबूब। ठीक है, 1325 में रिवोल्ट हुआ है बुगरा खान का। ठीक है, 1325 में रिवोल्ट हो रहा है बुगरा खान का, हु इज द इक्तदार ऑफ बंगाल। ठीक है, तो 1325 में रिवोल्ट हो रहा है बुगरा खान का, एंड ही इज द इक्तदार ऑफ बंगाल, एंड ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जो 1325 में जो बुगरा खान है, जो कि बंगाल का इक्तदार है, वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं तो भाई इंडिपेंडेंट हूँ। ठीक है, उसके बाद जौना खान आ रहा है सीन्स में। जौना खान आ रहा है, हु इज नोन एज मोहम्मद बिन तुगलक, जो इधर ऑलरेडी बहुत बड़ा काम कर चुका है, तेलंगाना में जाकर उसका नाम ही बदल दिया है, सुल्तानपुर रख दिया है। ठीक है, तो ये 1325 से 1351 तक रहता है, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द तुगलक रूलर्स। एंड ये बहुत ज्यादा ही, इसका क्या बोले, इसका बेचारे का थोड़ा सा किस्मत भी खराब खराब रहता है, बट ठीक ठाक रूलर रहता है। ठीक है, मतलब रूलर रूलर का मतलब सोच अच्छा रखने वाला रूलर रहता है, लेकिन इसका थोड़ा लक खराब रहता है, मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, so he was an insane ruler, highly educated and experimental. ठीक है, हाईली एजुकेटेड है और एक्सपेरिमेंटल है। 1333 में इब्न बतूता आता है, 1333। ठीक है, 1333 में इब्न बतूता आ रहा है, हु इज अ ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को, ट्रैवलर है मोरक्को उसका। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक क्या उसको काजी बनाया था, काजी, रिलीजियस हेड फॉर 8 years। ठीक है, उसको बना रहा है काजी। ठीक है, काजी इज रिलीजियस हेड। ठीक है, एंड गाजी, गाजी इज गाजी जो है हु किल्स नॉन मुस्लिम्स। ओके, सो गाजी वो है, एंड काजी इज रिलीजियस हेड फॉर रिलीजियस हेड होता है काजी। ठीक है, आईबी रोट रहेला। ठीक है, इब्न बतूता ने एक किताब लिखा है रहेला, जिसने जो कह रहा है कि दुनिया का सबसे प्रॉस्पेरस सिटी है दिल्ली। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे प्रॉस्पेरस सिटी है दिल्ली, और कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना, यही 3 ऐसे जगह हैं जो कि तुगलक के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, सो कश्मीर, बलूचिस्तान और राजस्थान, या फिर राजपूताना, बस ये कंट्रोल में नहीं है तुगलक के, बाकी पूरा
पूरा भारत कंट्रोल में है, ठीक है। फिर मोरक्को और इंडिया के बीच में ट्रेड हुआ है, उसके बाद उसका भी जिक्र किया है, ठीक है। फिर फर्स्ट सुल्तान हु ट्राइड टू एबॉलिश सती सिस्टम, ठीक है। तो 1319 में जो सती सिस्टम शुरू हुआ था रामगुप्त के टाइम, तो उसको खत्म करने की कोशिश पहली बार किसने की है, तो वो कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। समझ ही लो कितना एक्सपेरिमेंटल रूलर रहा होगा ये। फिर क्या है, जो हाँ, तो ये जो सती का जो हिस्ट्री है वो क्या था कि जो गोपराज था, गोपराज जो कि कमांडर इन चीफ था, चीफ ऑफ आर्मी था रामगुप्त का। तो जब गोपराज मरा था तो उसकी वाइफ ने उसके फ्यूनरल में भूल गई थी बेसिकली। तो वहीं से सती का शुरुआत हुआ था, और उसको पहली बार खत्म करने की कोशिश किसने की है, तो किसकी है, तुम्हारे मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। उसके बाद अकबर ने भी कोशिश की है, मुगल मुगल टाइम पे अकबर ने भी कोशिश की है। फिर औरंगजेब ने भी कोशिश की है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब ने की है, फिरोज शाह तुगलक ने भी कोशिश की है, ये सब ने की है। और फिर फाइनली फाइनल जो बैन होता है ऑफिशियली, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक करता है 1829 में, ठीक है। 1829 में विलियम बेंटिक करता है, हु इज आल्सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फिर इसके टाइम पे सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा रिवोल्ट्स होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। साउथ इंडिया में 27 रिवोल्ट होते हैं और नॉर्थ इंडिया में 7 हो रहे हैं, ठीक है, 34 रिवोल्ट हो रहे हैं। तो इसने क्या सोचा कि कैपिटल को ही साउथ शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स रहता है। तो हम लोग इसके 5 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि फेल हो गए थे, ठीक है। तो इसके 26 साल के कार्यकाल में, 26 साल के राज्यकाल में 34 रिवोल्ट होते हैं, 34 रिवोल्ट होते हैं। एंड शिफ्ट इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, ठीक है। तो जो फर्स्ट फेलियर है, इसका जो फर्स्ट फेलियर है वो है शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, ठीक है। और उसका नाम चेंज करके क्या रखता है, दौलताबाद, ठीक है। दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट किया देवगिरी और नाम रख दिया दौलताबाद, ठीक है। ही केम बैक टू दिल्ली इन 2 years, ठीक है। ही केम बैक टू दिल्ली इन 2 years। और फिर हरिहर एंड बुक्का का रिवोल्ट हो रहा है साउथ में, ठीक है। तो जो विजयनगर एम्पायर है ना, हम्पी में, हरिहर एंड बुक्का, तो वो लोग रिवोल्ट कर दिए, ठीक है, ठीक है। और फिर वहां पर देवगिरी गया, 2 साल में वापस दिल्ली भी लौट गया। तो वो भी एक फेल है, मतलब उतना कॉस्ट लगाओ, जाओ आओ, आदमी लोग मरे बहुत सारे, आधे आधे लोग मर गए रास्ते में ही। तो ये सब बातें हैं। फिर इसका सेकंड फेलियर था खुरासन मिशन। खुरासन एक जगह है नॉर्थ, खुरासन, जो वो नॉर्थ में एक जगह है, नेपाल, मतलब आपका नॉर्थ ऑफ दिल्ली एक जगह है, कहीं आपका नेपाल हिमाचल प्रदेश वाला एरिया आप कह सकते हो। इतने ठंड में वो आर्मी भेज देता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं वहां पर। और आर्मी को ना 1 साल का सैलरी एडवांस में देता है। सो अगेन पैसे मिलने के बाद कौन ही काम करेगा, राइट। तो वो एक फेलियर था। थर्ड फेलियर है इसका, इंक्रीज इन टैक्सेशन इन द्वाब्स एंड सम ईयर ड्रॉट टुक प्लेस, ठीक है। मतलब सेम ईयर जिस साल उसने द्वाब वाले एरिया में टैक्सेशन बढ़ाया, उसी साल ड्रॉट हो गया। अब ड्रॉट हो गया तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, लोग अब टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका काइंड ऑफ तीसरा फेलियर हो गया, ठीक है। फिर जो इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था, अच्छा इसने एक अच्छा काम किया था एक्चुअली। इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन के लिए एक डिपार्टमेंट आ रहा है, दीवाने कोही, ठीक है। दीवाने कोही जो है, दैट इज अ डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ठीक है, दीवाने कोही, ठीक है। जस्ट हैव टू he created a department for agriculture and irrigation which was दीवाने कोही, ठीक है। फिर इसका फोर्थ फेलियर हो रहा है इश्यू ऑफ टोकन करेंसी, ठीक है। इसने क्या कर दिया कि ब्रॉन्ज के कॉइन्स बना दिए, और ब्रॉन्ज का कॉइन सबको घर में आना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये भी एक क्राइसिस हो गया, सबके पास सब सब मतलब पैसे ही बनाने में लग गए, ठीक है, काम नहीं कर रहे, पैसे ही बना रहे हैं सब, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक कंस्ट्रक्टेड टॉम्ब ऑफ हजरत निजाम इन दिल्ली, ठीक है, हजरत निजाम, ठीक है। हजरत हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है ना, जिसको भी टाइटल दे रहा है, टाइटल दे रहा है कौन, घियासुद्दीन, वो जो पहला तुगलक है, घियासुद्दीन तुगलक। तो घियासुद्दीन इसके पापा ने तो उसको महबूबे इलाही बोला, अल्लाह का बंदा बोला, राइट, अल्लाह के महबूब बोला।
तो अब उसके लिए कुछ करना भी चाहिए ना बेटे को। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, टॉम बनाया हजरत निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया का टॉम कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। ठीक है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का टॉम दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ फेलियर क्या है, करचील मिशन। उत्तराखंड में एक मिशन ये कर दिया उत्तराखंड में। अच्छा, ये करचील मिशन ये है नॉर्थ, ये जो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है ना, करचील मिशन वो है करचील। ठीक है, तो 50% ऑफ आर्मी मैन गॉट किल ड्यू टू कोल्ड सीजन। ठीक है, ठीक है, तो दो चीजें हो गई। तो करचील मिशन है नॉर्थ वाला, और खुरासन मिशन जो है वो एक साल का पहले एडवांस सैलरी दे दिया गया। मतलब खुरासन मिशन होने के एक साल पहले ही उसे सैलरी दे दिया गया सारे आर्मी के लोगों को। ठीक है, फिर 1351 में ठट्टा रिवोल्ट हो गया सिंध में। ठीक है, सिंध वाले एरिया में हो रहा है ठट्टा रिवोल्ट, जिसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक डाइड ऑन द वे टू ठट्टा। ठट्टा जाने के रास्ते में ही वो मर जाता है। ठीक है, फिर फिरोज शाह तुगलक जो कि चचेरा भाई है जौना खान का, वो आ जाता है गद्दी पर। 1351 से लेकर 1388 तक रहता है। ठीक है, 37 ईयर्स तक ये रहता है गद्दी पे। ही इज द मोस्ट काइंड सुल्तान, और इसको बोलते हैं अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड। ठीक है, क्योंकि इसका जो पॉलिसी मेकिंग था वो बहुत ही काइंड था ये। लेकिन जो था ये अगर सेक्युलरिज्म का बात करो तो उसका धज्जिया उड़ा देता था। मतलब बेसिकली औरंगजेब से भी ज्यादा मतलब ये था, रिलीजियसली बायस था कह सकते हो। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक जो है उसने बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, उसने फिरोजा शहर बनाया है। ठीक है, फिरोजा शहर बनाया है। फिर अपने बेटे के नाम पे बना दिया है फतेहपुर शहर, जो फतेहपुर हरियाणा में एक जगह है, फतेहपुर सिकड़ी नहीं, ये फतेहपुर एक जगह बनाया हरियाणा में फतेह खान के नाम पे। फतेह खान कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक का बेटा है। ठीक है, उसके बाद फिरोजपुर बनाया है पंजाब में एक जगह फिरोजपुर। फिरोज शाह कोटला बनाया दिल्ली में, ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ पे जिसका भी अब नाम चेंज होकर कर दिया गया है। इन पे रख दिया ना शायद हमारे फॉरेन हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के नाम पे। ठीक है, तो फिर फिरोजाबाद में क्या किया है इन्होंने, इन्होंने क्या किया है कि उसको बोल दिया है, मतलब फिरोजाबाद जो आगरा, मतलब आगरा जो है उसका नाम फिरोजाबाद रख दिया है। और उसको क्या है, वो बैंगल सिटी ऑफ इंडिया बना दिया है। ठीक है, और जो जौनपुर है, जौनपुर ठीक है, जौना खान मतलब जौना खान अपने भाई के नाम पे, अपने भाई के नाम पे उसको बना दिया है बेस्ट मुस्लिम एजुकेशन का एक जगह, हब बना दिया है। ठीक है, जौनपुर को। ठीक है, और उसको क्या है, वो है सिराज हिंद, ठीक है, सिराज ऑफ ईस्ट। ठीक है, सिराज इज अ प्लेस इन ईरान विच इज वेरी फेमस फॉर मुस्लिम एजुकेशन। ठीक है, तो ये बना रहा है सिराज हिंद। ठीक है, मतलब सिराज ऑफ ईस्ट बना रहा है, बेसिकली इंडिया में एक सिराज बना रहा है। तो वो कौन है, वो है जौनपुर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक क्रिएटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ कनाल्स फॉर इरिगेशन। सबसे ज्यादा कनाल्स कौन बना रहा है, तो फिरोज शाह तुगलक बना रहा है। फिर सिरसा कनाल जो है, जिसके कि 1200 गार्डन है, जिस कनाल के दोनों तरफ देखा जाए तो मिलाकर 1200 गार्डन हैं सिरसा कनाल के दाएं बाएं, तो वो भी बना रहा है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक डिस्ट्रॉयड जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी। ठीक है, पुरी का जगन्नाथ टेम्पल तोड़ रहा है। उसके बाद ही लूटेड ज्वालामुखी टेम्पल ऑफ कंगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो कंगड़ा में एक टेम्पल है ज्वालामुखी टेम्पल, उसको लूट कर रहा है उसमें। ही अप्लाइड जजिया टू ब्राह्मण्स। ठीक है, तो ब्राह्मण्स में पहली बार मतलब जजिया ये लगा रहा है। ऐसे तो हिंदूज पे सबसे पहले जजिया किसने लगाया था, मतलब इवन नॉर्मल नॉन मुस्लिम्स पे जजिया लगाया था पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने। बट फिर ये लगा रहा है, फिर ये बंदा लगा रहा है फिरोज शाह तुगलक, ब्राह्मण से भी लगा रहा है। ठीक है, तो सोचो। उसके बाद फिर दीवात एक खैरात एक डिपार्टमेंट में आ रहा है कि फॉर इकोनॉमिक हेल्प फॉर फ्री, मतलब जो गरीब लोग हैं उसके हेल्प के लिए बना रहा है एक दीवाने खैरात। ठीक है, दीवाने खैरात या दीवाते खैरात। ठीक है, दर उल शिफा क्रिएट अ हॉस्पिटल फॉर फ्री मेडिकेशन ऑफ द ली। तो ये जो दरुल शिफा है ये क्या है, ये फ्री क्रिएट अ हॉस्पिटल फॉर फ्री मेडिकेशन इन दिल्ली। ठीक है, समझ लो ना आप, मेडिसिन फ्री में होने चाहिए। फिर इकोनॉमिक को जो गरीब है उसको उसके लिए कुछ खैरात, मतलब दीवाने खैरात। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। ठीक है, तो बेसिकली काइंड भी एट द सेम टाइम रिलीजियसली बहुत ही एंटी, मतलब बहुत ज्यादा ही ये है, तोड़ मंदिर लूटना ये सब काम कर रहा है।
तो ये सब काम भी कर रहा है, लेकिन एक तरफ काइंड भी है, एक तरफ काइंड भी, एक तरफ क्रूड भी है, ठीक है। उसके बाद 1388 से लेकर 1394 का जो टाइम था वो बहुत ही अजीब था, मतलब बहुत सारे सुल्तान आते हैं और जाते हैं, लाइक 5 सुल्तान आते हैं और चारों इनकेपेबल रहते हैं और तुगलक डायनेस्टी का अंत हो जाता है। जो आखिरी सुल्तान है वो है नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। तो अगर ये देखेंगे ना तो नसीरुद्दीन महमूद बहुत ही कॉमन नेम है। ठीक है, जो नसीरुद्दीन महमूद रहता है ना, वो बलबन के पहले का जो स्लेव डायनेस्टी में भी एक रूलर रह चुका है, नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। और सेम नाम का नसीरुद्दीन महमूद या नसीरुद्दीन मोहम्मद नाम का एक आदमी आता है 1300 मतलब 1394 में, और वो 1414 तक रहता तो है, बहुत 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 हाईली इनकेपेबल रहता है, ठीक है। 1398 में एक इन्वेजन होता है तैमूर का, ठीक है, तैमूर, तैमूर का इन्वेजन हो रहा है। और उसमें क्या आ रहा है, उसमें जो खिज्र खान है, खिज्र खान हेल्प तैमूर, ठीक है, जो कि मंत्री है नसीरुद्दीन मोहम्मद का, नसीरुद्दीन मोहम्मद का जो मंत्री है खिज्र खान, उसने तैमूर को हेल्प कर रहा है। और फिर क्या कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और जब तैमूर जब अटैक कर रहा है ना, तो उसको हेल्प कर रहा है, तो दिल्ली को पूरा लूट लेता है। तैमूर क्या करता है, पूरा लूट लेता है दिल्ली, लेकिन उसको रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इसको दिल्ली के राजा बनने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इसको बस लूटपाट से मतलब है, ठीक है, लूटपाट से सब मतलब है। तो ये क्या करेगा, तो ये अपने बेटे शाहरुख खान को रख देगा, और जो खिजर खान है वो उसका केयर टेकर बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि तैमूर आता है, जो कि समरकंद का रूलर है एक्चुअली। समरकंद मतलब टर्की वाला एरिया समझ लो आप, ठीक है। वो समरकंद का एक रूलर है, वो दिल्ली आता है, लूटता है, चला जाता है और अपने बेटे को बिठा देता है, शाहरुख खान को, ठीक है। और उसका केयर टेकर कौन बन जाता है, खिजर खान बन जाता है, ठीक है, जो कि नसरुद्दीन महमूद का ही वजीर रहता है, मंत्री रहता है, ठीक है। उसके बाद सैयद डायनेस्टी का शुरुआत होता है, ठीक है, सैयद डायनेस्टी, इट इज द फर्स्ट शिया डायनेस्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट शिया डायनेस्टी ऑफ इंडिया। और अब क्या है कि अब शाहरुख खान भी उतना उसको भाई क्यों ही, वो भी उतना इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है, उसको भी उतना इंटरेस्ट है नहीं। तो खिजर खान को ही बेसिकली, मतलब खिजर खान इज द हेड बेसिकली, लेकिन खिजर खान डिड नॉट एक्सेप्ट द टैग ऑफ सुल्तान, ठीक है। तो बेसिकली इन द नेम ऑफ शाहरुख खान ही चल रहा है, जो वहां का राजकाज है वो शाहरुख खान के नाम पे ही चल रहा है, या फिर तैमूर के नाम पे ही चल रहा है। लेकिन खिजर खान इज द हेड, इज द बेसिकली प्राइम मिनिस्टर काइंड ऑफ है, ठीक है, खिजर खान। ये 1414 से लेकर 1421 तक रहता है खिजर खान, ठीक है। फिर इसके बाद आता है मुबारक शाह, इसके बाद आता है मुबारक शाह, वो रहता है 1421 से 1434 तक, ठीक है। और इसका जो वजीर है ना, बहलोल लोदी, ठीक है, जो वजीर है बहलोल लोदी, वो आ रहा है, अच्छा, ठीक है। तो मुबारक शाह है, उसका वजीर है बहलोल लोदी, और बहलोल बहलोल लोदी उसका इतना चहेता है, उसको टाइटल दिया है खाने खाना का, ठीक है। खाने खाने का टाइटल पहली बार दे रहा है बहलोल लोदी को, कौन, मुबारक शाह, ठीक है। और बहलोल लोदी क्या कर रहा है कि बहलोल लोदी को ही, मतलब उसका आगे बढ़ेगा, अभी और चीजें बढ़ेंगी आगे, देखो अभी कैसे आगे चीजें बढ़ेंगी, कि जो मुबारक शाह है ना, तो मुबारक शाह रूलर तो अभी है ही 1221 से 1234 तक, ठीक है। और बहलोल लोदी को, उसको मतलब उसको एकदम खाने खाना बना दिया है अपना, ठीक है, वजीर बना दिया है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि जब मुबारक शाह डिक्लेयर करता है कि बहलोल भी उसका बेटा है, मतलब बेसिकली बहलोल लोदी को वो अपने बेटे की तरह, मतलब बेटे का टाइटल दे रहा है, ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह जो रूलर है उसके पास, मतलब 1445 में जो रूलर बनेगा, मतलब बहलोल लोदी को बोल रहा है कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन जो राजा है वो उसका अपना बेटा बनेगा, अलाउद्दीन आलम शाह। तो ऑब्वियसली बहलोल को ये बात पता नहीं, वो जो अग्निपथ में जो हुआ था वही हो गया। और फिर बहलोल रिवोल्ट कर दिया और स्टार्टेड लोधी डायनेस्टी इन 1451, ठीक है। तो ये जो स्टोरी समझ में आया अलाउद्दीन आलम शाह और मोहम्मद शाह और बहलोल लोदी के बीच का, ठीक है। तो फिर लोधी डायनेस्टी की शुरुआत होता है, बहलोल लोदी ने शुरुआत किया है, और ये चलवाता है बहलोली कॉइन्स, ठीक है। और ये जौनपुर वाले एरिया को लोधी एम्पायर में ऐड कर लेता है, ठीक है। सो
अब इसने जौनपुर वाले एरिया में लोधी इंपायर को ऐड कर लिया है। उसके बाद आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी आता है ना, तो इसी के टाइम पे, मतलब ये 1489 से लेकर 1517 है टाइम पीरियड। देखो सिकंदर लोधी का 1489 से लेकर 1517, इस टाइम पे ही पोर्टुगीज ट्रैवलर आ रहा है साउथ में, ठीक है। वास्को डगामा, वास्को डगामा आ रहा है, जमोरीन कैलिकट, ठीक है, जमोरीन राजा का नाम, कैलिकट जगह, ठीक है। तो ये आ रहा है 1498 में। फिर जो सिकंदर लोधी है ना, ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द लोधी रूलर्स। लोधियों में ही वॉज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। ही शिफ्टेड द कैपिटल टू आगरा इन 1506, ठीक है। ये आगरा शिफ्ट कर रहा है अपना कैपिटल इन 1506। दिल्ली से अब कैपिटल शिफ्ट हो गया है आगरा, ठीक है। और नेम्ड इट एज सिकंदराबाद, ठीक है। तो अब सिर्फ शिफ्ट ही नहीं किया कैपिटल, इसको नाम भी चेंज करके सिकंदराबाद कर दिया, ठीक है। ही कैप्चर्ड बादलगढ़ फोर्ट, बादलगढ़ फोर्ट को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। ठीक है, बादलगढ़ फोर्ट कैप्चर कर रहा है आगरा का, और फिर सिकंदराबाद नाम रख रहा है आगरा का, ठीक है। तो आगरा का देख लो कैसे नाम चेंज होते रहता है बार बार। एक फिरोजाबाद भी किया गया, आगरा का नाम चेंज, फिरोजाबाद किया है वही फिरोज शाह तुगलक, और अब क्या हो गया, अब सिकंदराबाद हो गया, ठीक है। ही रोट ही रोट अ बुक गुलरुखी, ठीक है। मतलब ये सिकंदर लोधी है, ये राइटर भी है, ये गुलरुखी एक किताब लिखा है, ठीक है। ही रोट अ बुक गुलरुखी। फिर एक मेजरमेंट का सिस्टम ला रहा है, गजाए सिकंदरी। गजाए सिकंदरी एक सिस्टम ला रहा है मेजरमेंट का, जिसमें से कि एक सिक गज इज इक्वल टू 30 इंचेस। समझ रहे हो, एक सिक गज इज इक्वल टू 30 इंचेस, ठीक है। तो समझ रहे हो, मतलब करीब 2.5 फीट। एक सिकंदरी गज इज इक्वल टू 2.5 फीट, ठीक है। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी फिर आ रहे हैं सीन में 1517 में। 1517 से 1526 तक रहेंगे ये इब्राहिम लोदी। ही वॉज द लास्ट सुल्तान, और जो लोग थे इससे बहुत ही ज्यादा नाखुश थे, ठीक है। तो 1517 में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ घटोली, जिसमें इब्राहिम लोदी और राणा संघा ऑफ मेवाड़ में जंग होती है, और इसमें जीत जाता है। मतलब राणा संघा को रिप्रेजेंट कर रहा है संग्राम सिंह, और संग्राम सिंह जीत जाता है। तो ये तो वीक दिखा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है इब्राहिम लोदी का, राइट। और फिर 1519 में फर्स्ट अटैक हो जाता है बाबर का इन बजुआर भेड़ागोरा फोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और बाबर क्या यूज करता है, कैनन्स और एक्सप्लोजिव्स, ठीक है। सो 1519 में बाबर का पहला अटैक हो रहा है कहां पर, तो बजुआर और भेड़ागढ़ फोर्ट यूपी में, ठीक है। बाबर का पहला अटैक हो रहा है बजौर भेड़ागढ़ फोर्ट उत्तर प्रदेश में 1519 में, ठीक है। और 1517 में ऑलरेडी हार चुका है ये इब्राहिम लोदी। किससे हारा है, तो राणा संगा का रिप्रेजेंटेटिव संग्राम सिंह से हारा है, ठीक है। 1520 से 21 के बीच में तीन और अटैक करता है बाबर सिंध और कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद दौलत खान लोधी है, जो कि सूबेदार या फिर इक्तेदार कहो पंजाब का वो है, ठीक है। वो इनवाइट कर रहा है, ठीक है। तो दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर टू अटैक इब्राहिम लोधी, ठीक है। उसके बाद 1526 में पहला अटैक हो रहा है, लाइक फर्स्ट बैटल हो रहा है पानीपत में, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, डेट है 21 अप्रैल का, 21 अप्रैल का डेट है, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो रहा है। बाबर का 12,000 सैनिक और इब्राहिम लोदी का 1 लाख सैनिक, ठीक है, 1 लाख सैनिक आपस में भिड़ रहे हैं। लेकिन जो बाबर है उसके पास दो तोपचीज है, दो तोपची है, मुस्तफा खान और उस्ताद अली। इन दोनों खूब तोप छोड़ते हैं, कैनन्स का यूज करते हैं, एक्सप्लोजिव्स का यूज करते हैं, और फिर वहीं पर इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है, ठीक है। तो फिर इब्राहिम लोदी पानीपत में मर जाता है। तो इसलिए इब्राहिम लोदी का टॉम कहाँ बनेगा, तो इब्राहिम लोदी का टॉम बनेगा पानीपत में ही। So basically, he is the only Delhi Sultanate, only Sultan of Delhi Sultanate to die at war site, ठीक है। तो वॉर साइट पे यही एकमात्र ऐसा सुल्तान है जो कि वॉर साइट पे मर रहा है, ठीक है। तो ये है। और पानीपत का एरिया उसने क्यों चूज किया था बाबर ने, क्योंकि इट वाज वो प्लेन एरिया था, और यमुना रिवर थी, मतलब उसके पानी वानी था, तो पानी तो बहुत कुछ इजी हो जाता है, राइट। और फिर बाबर का एक प्लान था उसी एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब उसने बहुत कुछ सेटअप किया था, ठीक है। मतलब गड्ढे उड्ढे खन खन के रखे होंगे, या पता नहीं क्या क्या किया हुआ। बेसिकली उसके प्लान का एक बहुत बड़ा पार्ट था पानीपत लोकेशन, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग कल पढ़ेंगे मुगल मुगल एम्पायर। तो जैसे एंशिएंट इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि गुप्ता पीरियड वाज द गोल्डन पीरियड, वैसे ही
मिडियवल में मुगल पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मिडियवल इंडिया। ठीक है, तो हम लोग कल देखेंगे, बाबर से शुरुआत करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिनिश द पार्ट। बाबर कर लेंगे, हुमायूं कर लेंगे, एंड ऑब्वियसली बीच में शेरशाह शुरू ही आएंगे तो उन्हें भी कर लेंगे। तो उसके बाद अकबर का भी देखते हैं जहां तक हो सकता है, अकबर तक करने की कोशिश रहेगा। ठीक है, अकबर तक कोशिश रहेगा, अकबर तक हम लोग कल कर ही लें क्लास में। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड नाइट एवरीवन।